Sciences, Raichur. Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh, and Farmers Park, Hyderabad, Telangana. I cordially welcome you all to this 21 days winter school training on fostering environmental sustainability through food security, agricultural, and modern science innovations. Vital Biotech is India's leading publication, research, and training institute whose goal is to tackle the world's most pressing problems which related to food and agriculture. Whereas Agriculture Forum for Technical Education of Farming Society, Kota, serves as a spiracle between the network of rural communities in India and other stakeholders, such as the government, development organizations, and corporate entities. Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur, Chhattisgarh was established on January 20th, 1987. IGKV has a primary mandate to provide education, conduct research, and offer extension services in the field of agriculture and related areas. Its work plays a vital role in improving agricultural practices and the lives of farmers in Chhattisgarh. University of Agricultural Sciences, Raichur came into existence on 22nd of November 2008 through bifurcation from US Dharwad. It is the third agricultural university established in the state after Bengaluru and Dharwad in Karnataka. With the establishment of UAS Dharwad in 1986, Raichur still had the privilege of being the second largest campus and a major hub of education in this region. Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, established in June 2012, has nearly 95 government and private colleges affiliated in the 4 districts of Chhattisgarh state, which together constitute the jurisdiction of ABVV. The university plans to develop strategy for enhancing the range of pedagogic approaches and the use of technology. As a part of this approach, the university plans to start classrooms in the state-of-the-art ones, enabling teachers to teach using a wide variety of media. Farmers Park is a platform committed to empowering organic and natural farmers across India by providing farm advisory services, free soil testing, and marketing support. It aims to promote sustainable farming practices, helping farmers maximize their yield while protecting the environment. Through their services, they strive to create a strong, eco-conscious agricultural community nationwide. And also, I congratulate the entire organizing team for organizing this insightful training program. Today, we are highly privileged to have such honorable dignitaries among us. It is a matter of great pride for us today that we have Dr. Sumitra Tiwari. Sir is an assistant professor in the Department of Food Processing and Technology at Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya in Bilaspur, Chhattisgarh. He has a PhD in Chemical Engineering from Central University, Bilaspur, MTech in Agricultural Processing and Food Engineering. He has received the University Gold Medal in Masters, the Inspire Fellowship from DST, Government of India. He is a certified assessor in spices and foods from the National Skill Development Corporation of India and FSPCA, Preventive Controls for Human Food from the FSCA, USA. He has qualified for the ICAR-NET in Post-Harvest Engineering and Technology, and he has published more than 30 research publications in international and national journals, more than 15 articles in Hindi and English in different magazines, and participated in more than 25 conferences in India and abroad. Sir, your achievements are amazing, and we are unable to enlist them all in such a short period. So I wholeheartedly welcome you, and I would like to hand over this virtual stage to you, sir. Over to you. Thank you, ma'am. And this is the second time I am seeing you in the virtual platform. And I'm really thankful to Dr. Jiten Mehta, sir, who is the key person, I think the most important person of we are conducting 21 days winter school program. And this is a second program we are conducting jointly. And this time Indira Gandhi Agricultural University also collaborated with us. And this is a very good functions are going. And yesterday we have seen that uh, all 3 vice chancellors are came together for our inaugural function. This is our the most hard worker person is Dr. Jiten Mehta. I am really thankful to you, and I am also thankful to our HOD Engineer Yashwant Kumar Patel sir, Reva Kumari ma'am. He's working very hard to successful for this program, and this is a program is going very well with your all efforts, and all the participants are actively joined our program. I am also thankful to all our participants audience for joining this program. Thank you. And now I am going to share our presentation.
that is on our food security and food sustainability. Because as per our topic, we have chosen this topic. Is my screen is visible to all? Yes, sir. Thank you. Then my topic is the food nutritional Sir, can you security. please share it in full screen mode, sir, please? Okay, sure. Is it right now in the full screen? Yes, sir. Perfect. Okay. Then my topic is the food nutritional security for sustainability. So first of all, we have to understand what is the food. Food is that just like a fuel, this we use in our vehicles. Without food, we cannot grow and walk together, and we can talk each other because food is an essential part for all humans. So food are more necessary, and food give us a nutrition. Food is also necessary for growth, development, and in general, this metabolism. And that is on the basis of our nutrition. So, what are the nutritions and what are the security we needed? Or what are the security is essential for our sustainability? That is our main question. That is, I am going to answer you all. The person who are willing to interested in biology, what are the vitamins and vitamins roles in our body? It is a very essential to hear you from. First of all, first question is arising what is the food security? As per the definition, the condition in which all people have access to sufficient food. What does mean by sufficient food? It is sufficient for our proper growth and development. So that is called the sufficiency. That is also for nutritional food that meet their dietary need for an active and healthy lifestyle. That is the most essential. There are the four pillar, or you can also say that key elements of food security. First is the availability. If you have available the food, then you can able to consume it. That is sufficient food is necessary to produce and important. And accessibility. It is a affordable price. It can access for the all peoples. That is important. And utilization, how you can utilize the nutrition, properly utilize nutrition. As per our food scientists, that is the most important, how we can utilize properly. After that, Tiwari, sir, stability. may I please interrupt? Yeah, yeah. The participants are preferring bilingual mode, English and Hindi together, if possible, sir. Okay. हाँ. Thank you, So sir. स्टेबिलिटी कंसिस्टेंट मतलब हमेशा प्रॉपर सुनिश्चित रूप से फूड हमारा प्रोवाइड होता रहे, उसके लिए हम लोगों को ये एलिमेंट्स हैं. अब जैसे कि अवेलेबिलिटी असेस, अवेलेबिलिटी जैसे कि आई हैव टोल्ड अर्लियर कि रेफर्स टू फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब वो प्रॉपरली हो. जैसे फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हो, जैसे जस्ट लाइक अ मनी. पैसे क्या है, दैट इज इमेजिनरी थिंग्स है ना. वी कैन नॉट, ए फिजिकल एंटिटी नहीं है. मतलब हम लोग कहीं मान लो आइलैंड में फंस जाएगा, हमारे पास लॉट ऑफ मनी हो, पैसा हो, but we can not able to eat and we can not able to sustain with the money, but we can able to sustain with our food. तो फूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है मनी से, ये बताने की कोशिश है इसमें. एसेसिबिलिटी का मतलब जो हर एक इंडिविजुअल है उसके पास में, जिसके परचेसिंग पावर कम हो, मिडिल इनकम हो, लो इनकम हो, हाई इनकम हो, उनके पास जनरली देखा गया है कि जो हाई इनकम हो दे गेट गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इन कंपेयर टू लो इनकम, जो पुअर पीपल है उनके लिए. यूटिलाइजेशन है कि फूड के प्रॉपर यूटिलाइजेशन, स्टोरेज सिस्टम, सैनिटाइजेशन, डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं फूड के, कि जिसके एक शुद्ध गुणवत्ता युक्त जो खाद्य पदार्थ है हमें वो सुनिश्चित हो सके. अब क्या ग्लोबल स्टेटस क्या है फूड सिक्योरिटी सिचुएशन को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो हम लोग को देखा है कि 820 मिलियन पीपल जो है, मतलब 820 मिलियन. और अगर इसका टोटल हम वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो 33%, मतलब एक चौथाई के आसपास जो हमारे पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, वो आज भी फूड सिक्योरिटी के लिए एक झगड़ा कर रहा है. मतलब खाने के लिए, जीवित रहने के लिए उनकी एक लड़ाई जो है अनवरत जारी है. वो कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? जैसे रीजन है सब सहारन अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीका में जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अफ्रीका के जस्ट ऊपर में
जो सहारा एक मरुस्थल है, रेगिस्तान है, वहाँ के आसपास में बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और क्लाइमेट चेंजेस के कारण लगातार एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। और सबसे ज्यादा जो हंगर इंडेक्स होता है वो उन कंट्रीज में, लिथुआनिया, सोमालिया, आसपास की कंट्री, वहां पे आप देखोगे समुद्री लड़ाके, जो पैरट्स होते हैं, कैरप्स ऑफ कैरेबियन आपने देखा होगा। तो वहां पे ऐसे लड़ाके और बहुत ज्यादा एक दूसरे को मार काट, बहुत ज्यादा वहां पे, क्योंकि फूड की जो सिक्योरिटी है वहां पे अवेलेबल नहीं, तो जो आम आदमी है वहां तक नहीं पहुंच पाए। इसी तरह जो एशिया है, इस एशिया में स्पेशली जो साउथ एशियन कंट्रीज है, उसमें कुछ कुछ हमारे इंडिया का पार्ट भी आता है, वहां पे इकोनॉमिकली इनक्वालिटी है, मतलब कहीं पे बहुत ज्यादा मतलब पैसे वाले हैं और कहीं पे बहुत गरीब है, जैसे बांग्लादेश का आप देख सकते हैं ऐसा। और उसमें कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं, जैसे कि आज आजकल आपने देखा होगा पाकिस्तान की जो हालत है, बोलना तो नहीं चाहिए मीडिया में, कि जो पाकिस्तान की जो हालत है, जो पॉलिटिकल रीजन के कारण है, वहाँ भी फूड इंडेक्स बहुत हाई हो गया, खाने का और खासकर रोटियों के लिए आ, बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और लैटिन अमेरिकन देशों में भी ये समस्या बनी हुई है। इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या कारण है कि जो फूड सिक्योरिटी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं? तो जो सबसे बड़ा, जो पुराना और प्रिमिटिव रीजन है, दैट इज द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, अब हम लोग उतना ज्यादा काफी क्लाइमेट को हम लोग अकॉर्डिंगली, जो साइंस का जैसे कि हम लोग डेवलप करते जा रहे हैं, वी कैन यूज क्लाइमेट एज पर अवर चॉइस, तो सो दैट अभी काफी रिड्यूस हुआ है। सबसे पहले है सूखा, ड्राफ्ट। मतलब क्या है, जब सूखा पड़ता है तो बहुत सारी फसलें होती नहीं तो फूड ग्रेन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। दूसरा फ्लड, बहुत ज्यादा बारिश होती है तो फ्लड के कारण भी बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत सारे खेत खलिहानों का नुकसान होता है। तो ये भी, और वेदर पैटर्न्स है दैट आर आल्सो इफेक्टेड, क्योंकि हम जानते हैं जितने भी ग्रेन्स होते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स होते हैं, वो टोटली डिपेंडेंट है क्लाइमेट पे, कि सभी के एक सीजन रहता है, कब उसको पानी चाहिए, कितना ठंडा चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना उसका सॉइल पैटर्न, सॉइल के न्यूट्रिशन चाहिए। सब जगह सॉइल में हर जगह एग्रीकल्चर क्रॉप प्रॉपर डेवलप ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो ये जो क्लाइमेट की बहुत बड़ी इशू है, और धीरे धीरे जो लगातार फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड है, जो हमारे थीम भी है इसका, कि जो सस्टेनेबिलिटी के लिए, तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग बनता जा रहा है। इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जैसे कि राइजिंग फूड प्राइसेस, आप देखते हैं टमाटर का, आलू का, लगातार प्राइसेस में बहुत डिफरेंस आ जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे खाने का पैटर्न चेंज हो रहा है। क्योंकि जो पहले आलू और टमाटर की प्राइसेस बहुत कम थी, पर जब हम लोग फूड टेक्नोलॉजीज उसको फूड सॉस के रूप में कन्वर्ट कर दिए, चिप्स के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं, मुरकरे के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं, तो जो उनका प्राइस रेट है काफी मतलब बढ़ चुका है। आप समझ सकते हैं, 2 रुपए किलो आलू मिलते हैं जब सीजन रहता है, ऑफ सीजन में, या फिर 2 रुपए किलो टमाटर है, टमाटो मिलते हैं। तो उसको हम लोग बाय करके जब उसको हम प्रोसेस करते हैं, जब उसको हम लोग बेचने जाते हैं, तो वो 1,000, 2 रुपए की चीज 1,000 2,000 रुपए तक भी कॉस्टली हो जाती है। तो जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है, वो बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन के कारण में ये प्रॉब्लम आ रही है। और ये जो प्रोडक्ट है, जहाँ पे नेसेसिटी है, जो हाई पावर, हाई इनकम जो ग्रुप है, वो उसको परचेस करने में एफिशिएंट रहता है। जो लो इनकम ग्रुप है, उनके लिए प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती जा रही है। अभी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब वॉर है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, रूस एंड यूक्रेन का फाइटिंग चल रही है उसमें, क्योंकि जो यूक्रेन है, दिस इज अ बाउल ऑफ वीट बोल सकते हैं। बाउल ऑफ वीट का कहने का मतलब है कि वहां पे सबसे ज्यादा वीट होती है, और जो खासकर यूरोपियन कंट्री से ज्यादा कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वहां सबसे ज्यादा अगर कोई वीट को सप्लाई करता है, दैट इज अ यूक्रेन। तो फाइट में उलझने के कारण वहां पे बहुत ज्यादा वीट की जो प्राइसेस है यूरोपियन कंट्रीज में, बहुत इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसी प्रकार ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये भी अच्छा रूल करता है। जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान भी आजादी के समय 1947 के आसपास बात करें, तो सबसे ज्यादा काबुली चना, जितने भी अच्छे फसल, जो पंजाब का आधा से ज्यादा जो बड़ा रीजन है पंजाब, जो कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा फर्टाइल फर्टाइल स्टेट के रूप में जाना जाता है, मैक्सिमम जो पोर्शन है पाकिस्तान में गया हुआ है। फिर भी वहां पे अभी आज खाने के लिए बहुत आप लोग न्यूज चैनल देखते हो, बहुत सारी लगातार इश्यूज बने हुए हैं, जिसको क्योंकि पॉलिटिकली डिस्ट्रप्शन के कारण वहां पे कर नहीं पा रहे हैं। और बाहर से जो इम्पोर्ट हो रहा था वो भी काफी स्टॉप। ग्लोबल ट्रेड में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, क्योंकि आपको जैसे भारत में है, खासकर जैसे कि अ, उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे बहुत ही अच्छी मात्रा में आम की खेती होती है, अच्छी क्वालिटी के, जैसे अल्फांसो है, आप ऐसे देखते हैं।
ये जितने भी अच्छी क्वालिटीज के जो ग्रेड के जो फूड हमारे यहाँ पे होते हैं, मैंगो हो चाहे बनाना हो, ये कहीं ना कहीं आसपास वियतनाम में देखेंगे, यूएस में देखेंगे, वहाँ पे जितने अच्छे यूरोपियन कंट्रीज में देखें, सारे अच्छी क्वालिटी की चीजें वहाँ चली जाती है। जो लो ग्रेड क्वालिटी का फूड होते हैं, जैसे एप्पल की भी बात करें, तो जो बहुत अच्छे क्वालिटी के फूड है सारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। जो लो क्वालिटी ग्रेड के रहते हैं, जो हम लोग आसपास हम जनरली खाने जाते हैं, तो लो ग्रेड कैटेगरी के मिल रहे हैं। इसका क्या है, ग्लोबल ट्रेंड के कारण चेंजेस, सिनेरियो चेंज हो गया, जिसके पास ज्यादा पावर है वो अच्छी चीजें, अच्छी क्वालिटी की चीजों को खरीद ले रहे हैं। और पॉपुलेशन ग्रोथ, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो फूड में काफी प्रेशर बन रहा है। जैसे हम देख रहे हैं, एक आज हम लोग इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन चुके हैं वर्ल्ड में, और इसके कारण जो फूड सिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दबाव बना हुआ है, प्रेशर बना हुआ है। और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फूड के, सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस है मॉल न्यूट्रिशन। मॉल न्यूट्रिशन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे आपने रिकेट्स देखा होगा, रतौंधी देखी होगी, बहुत ज्यादा स्किन्स में खराब होते हैं। ये सारे सारे कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है मॉल न्यूट्रिशन के। और सोशल इकोनॉमिकल इश्यूज कैसे हैं, प्रोडक्टिविटी और जो वीकेंड इकोनॉमिक्स हैं फूड सिक्योरिटी एरिया में, जो सोशल इनकम के कारण भी, और सोशल जो थॉट्स होते हैं कि सोशल थॉट, कोई मीट खाना है, कोई वेगन खाना है, कोई वेजिटेरियन खाना है, तो डिफरेंट, ये भी काफी फूड सिक्योरिटी सिस्टम को इफेक्ट करता है। जैसे जैन फूड आता है, हलाला फूड आता है, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो सोशल जो एस्पेक्ट्स होते हैं, बिलीफ होती हैं, उनके कारण भी एक बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फूड सिक्योरिटी के। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसे हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, पाकिस्तान एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आज के समय में। अब इसके क्या क्या सॉल्यूशंस होते हैं, सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है जो हमारे यहाँ के आज 21 डेज का थीम है, दैट इज सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब आगे ही चलता है, अनवरत चलते रहे। हमारी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, ऐसे प्रमोशन होना चाहिए कि वो हम लोग डे बाय डे आगे चलते हैं। ये काम के लिए कि हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर और बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज करें, वो हमारे सॉइल को खराब करे, वो हमारे ग्रेन को खराब करे, वो हमारे ग्रोथ को खराब करे, वो हमको कैंसर दे, वो हमको बहुत सारे टाइप के डिसीज दे, वो तो हमारे इम्पोर्टेंसी का बहुत ज्यादा कारण जो ये पेस्टिसाइड है कि वो जानवर को किल कर देते हैं, वो हो। इवन आज के जितने भी हाइब्रिड फसल आते हैं, जो हम लोग जनरली हाइब्रिड खाते हैं, जिसकी जो हमने हाइब्रिड और ग्रीन एवोल्यूशन में किए हैं, वो इनफर्टिलिटी के जो आज बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इससे भी रिलेटेड है काफी। इस पे भी काफी अच्छी भी रिसर्च हो रही है, बहुत डरावने और विभत्स रूप इसमें आए हैं। तो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक नेचुरल फार्मिंग है, जो कि बहुत बेस्ट प्रैक्टिस है, और बहुत जरूरत है कि हम लोग इस ओर भी चलना चाहिए। इम्प्रूव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आज, जबकि पूरे का पूरा ये ग्लोब वर्ल्ड की बात करें, हम लोग एक जाल के जैसा हो गया है, पारिस्थितिक तंत्र बन गया है। ये जो फूड सप्लाई सिस्टम, क्योंकि बहुत अच्छे हमारे पास शिप्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, ट्रेन्स हैं, इसलिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री, या बहुत एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी फूड का जो हमारे सप्लाई बहुत प्रॉपरली हो रही है, तो जहाँ पे नीड है उसमें कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, लिखा हुआ है। तो इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं कि बहुत सारे जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम्स के लिए प्लानिंग चल रही है, बहुत से ज़्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, और अदर एनजीओज भी इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें फूड सिक्योरिटी सिस्टम लिए काम कर रहे हैं। अब comes to our main topic is that nutrition. What are the nutritions? Nutritions, what are the types of nutritions? First is macronutrients and micronutrients. Just like macro में आता है कार्बोहाइड्रेट, जो हम लोग डेली रूटीन में खाने पीने के चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन हो गया है, फैट है, वाटर है। और इसी में बहुत खास चीजें हैं विटामिन, जिसके सबसे डॉक्टर फंक ने इसको रिसर्च किया था। इस रिसर्च की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है विटामिन की। इसका नाम है विटामिन है वाइटल, जो लैटिन वर्ड में वाइटल होता है। वाइटल का मतलब होता है कि जो जीवंत रखता है, जीवित रखता है। जब हम लोग, जब भी पहले, जब भी कोई बीमारियां होती थी, कोई परिस्थितिक प्रॉब्लम आती थी, तो ये सोचा जाता था कि जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई वायरस आ गया, तो जो भी अटैकर्स होता है वो फॉरेनर होता है, जो बॉडी के अंदर में होता है, इंटरनल नहीं होता है। एक पैरासाइट स्टडी है, हिस्टोरियन ने उसको सर्च किया कि डेनमार्क की बात है, डेनमार्क से जब जहाजें दूसरे कंटिनेंट में जाते थे, तो जब भी देखते थे समुद्री जो लोग यात्राएं करते थे, वो जनरली मीट फूड पे डिपेंडेंट रहते थे, जैसे मछली हो गया, भेड़ बकरी भी साथ में अपने साथ में लेके जाते थे, तो मीट प्रोडक्ट ही खाते थे। उनको एक बीमारी होती थी, उनके होंठ फट जाते थे, स्किन्स में
स्किन डिस्ट्रप्शन हो जाते थे, जिसको स्कर्वी नाम से भी जाना जाता है। जब वहां पे आते जाते थे, तो जब उन्होंने देखा कि जब उनका जो सिप जाता है और वहां से कुछ वजन कम ना हो जाए, तो वजन बढ़ाने के लिए वहां पे क्या, गेबेज, जो गोभी है, पत्ता गोभी है, जो हरी सब्जियां बहुत रहती थी, पत्ता गोभी बहुत था उनके पास में, तो उन्होंने उसको ला दिया। तो जो आने जाने वाले लोग करते थे, तो पत्ता गोभी भी खाने लग गए थे ज्यादातर। तो उन्होंने देखा जो ये लीफी वेजिटेबल खाने लग गए हैं, उनको ये बीमारी नहीं होती इस जहाज में जो जाते हैं। और जहां पे जिस जहाज में लीफी वेजिटेबल नहीं रहता, तो तब उन्होंने समझ में आया कि एक ऐसी भी चीज है जो अंदर हमारे विटामिन की कमी होती है, जिसको वाइटल बोलते हैं, जो हमारे जीवित रहने के लिए जरूरी है, जो कि बाहर का इन्फेक्शन के कारण नहीं होता, अंदर की कमी के कारण होता है। ये एक बहुत ही बड़ा रिसर्च का एक नया एरिया जो साइंस में उन्होंने स्टार्ट किया था। इसी को हम लोग आजकल विटामिन के नाम से जाते हैं। पहले तो मेजर 4 टाइप के थे, अभी 7 टाइप के हो गए हैं। विटामिन बी में भी 12 टाइप के हो गए हैं। उससे अलावा भी 2 और सर्च किए जा चुके हैं। धीरे धीरे ये अभी रिसर्च हमारा जारी है। कुछ मिनरल्स हैं, सोडियम है, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फोरस। ट्रेस मिनरल्स भी है, जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, सेलेनियम। बी कॉम्प्लेक्स में भी बहुत सारे चीजें हैं, विटामिन सी है, थायमिन है, राइबोफ्लेविन है, नायसिन है, बायोटीन है, पेंटोनिक एसिड भी है। ये बहुत ही अच्छा पिक्चर है, जो हमारे नए पार्टिसिपेंट्स हैं, ऑडियंस है, अगर जुड़े हैं, उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है डेली हमारे जो मसल्स के लिए जो जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है हार्मोन प्रोडक्शन की। इसमें दिया हुआ है कि प्रोटीन किस में है, जैसे कि एग है, मीट है, और पनीर है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट और जो लिपिड्स है, जो प्रोवाइड एनर्जी और रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और केमिकल मैसेंजर है, जो कि वाटर है, बहुत इंपॉर्टेंट फूड का कंपोनेंट है, मैसेंजर के रूप में बॉडी मेंटेन करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और मेन सोर्सेस क्या है कार्बोहाइड्रेट के, ये आज कल बहुत बड़ी समस्या के रूप में है। और जो भारत है, सबसे बड़ा ओबेस ओबेसिटी कंट्री के रूप में जाना जा रहा है। और एक डायबिटीज हब के नाम रूप में भी जाना जा रहा है, जबकि हम लोग वी डोंट वांट दैट कि हमारी जो पहचान है ऐसी ही नहीं होनी चाहिए। उसके पीछे मेटाबॉलिक हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रेगुलेट करता है लीवर में, अभी आऊंगा। तो कार्बोहाइड्रेट, प्री डायबिटिक, ओबेसिटी, ओवरवेट, लीन एंड नॉन डायबिटिक के बीच में एक रिलेशनशिप दिखा हुआ है कि जैसे ही आपका डायबिटीज, कार्बोहाइड्रेट इंटेक बहुत ज्यादा, टाइप 2 डायबिटीज के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। अगर बहुत ज्यादा होंगे, तो वो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो एज से ज्यादा अपने एज के दिखेंगे। जेनेटिक जो म्यूटेशन है, उसकी भी प्रॉब्लम होती है। आंखों की जो रोशनी है वो खराब हो जाती है, जो डायबिटीज के कारण में। इसीलिए हम लोग को इंसुलिन सेंसिटिव होना है, वेलनेस के लिए होना है। इसलिए स्लीप और स्ट्रेस को, क्वालिटी को कम करने के लिए ये बहुत जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी, जैसे कि फटीग्यू, अगर कार्बोहाइड्रेट कम खाते हैं, एनर्जी कम मिलेगी आपको, तो वीकनेस लग सकता है। डिफिकल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, नौसिया है, बैड ब्रीदिंग है, कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या है। ये विभिन्न प्रकार के हैं, जो कि ओबेसिटी और बहुत सारी चीजों को हमको नियुक्त करती है। और प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हम लोग कार्बोहाइड्रेट किसी भी चीज में फॉर्म में खाएंगे, तो कार्बोहाइड्रेट हमको मिलना ही मिलना है। और हम लोग जितने भी फूड हैबिट्स हैं, खासकर शुगर है जितने भी, वो कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, रसमलाई, दूध, मिठाई, जितनी भी जैसी चीजें हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और हमारे जो इनएक्टिव स्टाइल है, चलना फिरना कम है, बैठे रहना है, किसी कार में जाना है, इन्वायरमेंट कंट्रोल इन्वायरमेंट में जाना है, ये सभी हम लोगों को बहुत ज्यादा लेथार्जिक कर रहा है। और ये इसी के कारण जो हमारा ब्लड ग्लूकोज है, काफी हमेशा बढ़ा रहता है, और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो उसकी जगह पे हमको कोशिश करना है कि जो प्रोटीन रिच प्रोडक्ट है, उसको खाना है। इसमें फोटो फिगर में दिख रहा है, जैसे एग है, मीट है, जूस है, पोमोग्रेनेट है, स्ट्रॉबेरी है, ग्रेप्स है। तो इसमें विशुअल पोर्शन और सोमैटिक पोर्शन होता है। सोमैटिक पोर्शन वो होता है जो एनर्जी और कार्बोहाइड्रेट को प्रीडोमिनेंट लिमिट तक, फैक्टर तक ले जा सकता है। और विसरल कंपोनेंट, जो कि हमारा क्यू स्कोर कहते हैं, रिजल्टिंग डिसीज सिंड्रोम के लिए। और इंटरनल जो ऑर्गन्स है, उसको डिस्टर्ब काफी करती है।
ये बहुत सारे आपका फैटी लिवर है और किशोरकर है, उसमें क्या क्या जैसे फैटी लिवर है, प्रॉब्लम्स है, स्किन हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, मसल्स मास की प्रॉब्लम है, स्लोअर क्लॉटिंग है, ये बहुत सारे न्यूट्रिशंस हैं जिसको हम लोग प्रोटीन की कमी के कारण है, और इसको सेरम एल्बुमिन, सेरम ग्लोबुलिन, एल्बुमिन के रूप में दे सकते हैं। और प्रोटीन की एक निश्चित मात्रा क्या होनी चाहिए कि जैसे इनएक्टिव एडल्ट हैं उनको 1 किलो वजन पे 0.8 ग्राम पर डे हमको प्रोटीन की आवश्यकता है, रिकमेंडेड है। आवश्यक प्रोटीन की मात्रा है, जैसे एथलीट है कोई वर्क करता है तो एक, जैसे किसी का वजन 100 किलो है तो उसको 8 ग्राम के आसपास डेली का डेली उसको प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। एक्टिव लाइफ स्टाइल है तो उसको थोड़ा सा और ज्यादा है, 1 है पर केजी के हिसाब से लेना है। प्रेग्नेंट वुमन में भी, क्योंकि उनका बच्चा फीटस बढ़ता रहता है पेट में, तो उनको भी प्रोटीन की मात्रा 1.1 टू 1.3 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से उनको अपने वेट के हिसाब से खाना चाहिए। विटामिन ए का बहुत ही क्रुशियल फंक्शन है आइज के लिए, और भी साथ में कई कंपोनेंट है। विटामिन ए जनरली हम लोग प्लांट में लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रो विटामिन। प्लांट में जितने विटामिन होते हैं प्रो विटामिन होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं बीटा कैरोटोनो सैंथिन एंड बीटा कैरोटीन कन्वर्सन। अब बीटा कैरो बीटा क्रिप्टोजेंथिन, तो बीटा क्रिप्टोजेंथिन जैसे कि आपका कैरेट गाजर में बहुत ज्यादा है, पपाया में है, जितने भी ऐसे रेड कलर के फ्रूट्स होते हैं, इवन और रेड और येलो कलर के जो फ्रूट होते हैं जैसे कि आपका मैंगो, उसमें इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और ये जैसे कि अगर 12 कंपोनेंट रहेंगे, अगर बीटा क्रिप्टोजेंथिन की, तो वो एक कंपोनेंट आपको बन पाते हैं रेटिनॉल के। अब प्री विटामिन ए किसे बोलते हैं, जिसमें आपके मीट में हो गया, मिल्क में हो गया, जिसमें पाए जाते हैं उसको हम लोग प्री विटामिन ए बोलते हैं। विटामिन ए के जो पिगमेंट्स मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब ये बहुत ही अच्छा इसमें है, जैसे कि रेटिनॉल स्टर्स के रूप में अगर रहता है रेटिनॉल, तो वो किस में स्टोर करता है, लीवर में करता है। और जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए भी बहुत ज्यादा यूज होता है तो ऑल ट्रांस रेटिनॉल के रूप में हो जाता है। तो जैसे उसके केमिकली जो फंक्शन चेंज होते हैं उसका काम चेंज हो जाता है। और जब रेटिनॉल के फंक्शन के रूप में रहते हैं तो आईज में हमारे रेटिना के रूप में काम करता है। और ऑल ट्रांस रेटिनॉल एसिड रहते हैं जो न्यूक्लिक रेटिनॉल जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे आईज के पीछे वहां पे होते हैं। इसी तरह 6 रेटिनॉल एसिड्स का भी फंक्शन है। ये इसमें पूरा रोल दिया हुआ है विटामिन ए का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीटा कैरोटिनॉइड्स रहेगा, वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहां पे एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद जब स्ट्रीफिकेशन होता है तो वो हमारे किसमें, रेटिनॉल के रूप में स्टोर करता है लिवर में। और लिवर क्या करता है, जब उसकी आवश्यकता पड़ती है तो वो क्या करता है, प्रोटीन के साथ में रेटिना को भेजता है। जनरली रेटिना में इसकी आवश्यकता जो टारगेट सेल्स होते हैं वहां तक पहुंचते हैं, जिसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। और रेटिनॉल्स रॉड के रूप में भी पीछे रहते हैं, जब उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो ऑप्सिन के रूप में हो जाता है। और रोडोपेप्सिन जो कि फोटोपिगमेंट विजन के लिए काम आता है, रोडोपेप्सिन मतलब फोटोपिगमेंट विजन का मतलब क्या हुआ, इन सिंपल वर्ड में, जैसे हम लोग अंधेरा है, लाइट है, वहां पे अगर हम देखें तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कौन सा व्हाइट है कौन सा ब्लैक है, लाइट नहीं, तब भी हमारी ऑब्जर्वेशन की जो क्षमता रहती है वो फोटो पिगमेंट विजन के कारण होता है। और ये फिजियोलॉजिकल रोल है विटामिन ए का कि रेटिनॉल में क्या क्या है, सेल ग्रोथ में कैसे चलते हैं। और विटामिन ए डेफिशिएंसीज में डेली इंटेक कितना था, 70% आरडी के हिसाब से 2300 टू 3000 आईयू के रूप में होना चाहिए। तो जो कि एक, अगर उसकी कमी होती है, रतौंधी जिसको बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस है, इसको नेक्टोलोपिया भी बोलते हैं मेडिकल की भाषा में। ये आइस में विटामिन ए की बहुत सारी टॉक्सिसिटी और हाइपर विटामिन ए के जो डिस्फंक्शन है वो दिए हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। एक नया रिसर्च आया है कि जो विटामिन डी है वो हमारे, अगर एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है, उसमें ये कहा गया है कि जिसके लोगों को कैंसर होते हैं या जिनको पहले प्री डायबिटिक या जो डायबिटीज होते हैं, उन सभी के, चाहे कैंसर हो, चाहे उनको डायबिटिक की प्रॉब्लम हो, चाहे उन ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, तो कहीं ना कहीं उनके एक रिसर्च में आया है कि उनको विटामिन डी की कमी होती है। और विटामिन डी जो कि फ्री है, सस्ती है, हवा में और सनलाइट में पाया जाता है,
सनलाइट के कारण है। और उसके बाद भी इसकी डेफिशिएंसी के रेट बहुत ज़्यादा है, इवन 50% तक भी बहुत सारे विकसित देशों में इसकी कमी है। खासकर जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो कि शहरी सभ्यता में रहते हैं, रूरल में उसमें कम है। जो शहरी सभ्यता में रहते हैं उनको सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। एंड विटामिन डी आई थिंक सभी विटामिनों में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन डी के रूप में आगे बढ़ रहा है। और विटामिन डी के जैसे फंक्शन है, अगर हम लोग फूड वाले हैं, मेडिकल के हैं, तो 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल ये प्लांट में पाए जाते हैं। ये प्लांट से जब हम लेते हैं सिकोस्टेरॉल सिस के रूप में आता है, और जब हमारे बॉडी में रहता है कोल्सिफेरॉल D3 बोलते हैं, कोल्सिफेरॉल के रूप में रहेगा। इसके फंक्शंस बहुत सारे वेरियस फंक्शंस हैं। अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारे जो फंक्शंस हैं इसको हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। खासकर ये किडनी के फंक्शन में है, कई लोगों को पथरी की भी समस्या रहती है, कैल्शियम होम्योस्टेसिस है, मसल्स के हेल्थ में, बोन के हेल्थ में, ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में, कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट के डिसीज के लिए, न्यूरॉन डेवलपमेंट में मतलब जो ब्लड अपना न्यूरॉन्स है उसके लिए, इम्यूनो मॉड्यूलेशन के लिए। और इसी तरह मोनोसाइट्स में भी बहुत सारे मतलब जितने भी हमारे इम्यून डिसीज होते हैं, एंटी इम्यून डिसीज होते हैं, दैट इज आल्सो प्रीमिनेंट कॉज इज दैट विटामिन डी। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए, ब्रेस्ट के लिए, कोलन के लिए, लंग के लिए, एंड कैरोटिनॉइड्स के लिए, ये रेगुलेशन बहुत सारे सेल्स की जो ग्रोथ है, आई थिंक इट इज अ मोर स्पेशली जैसे कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। विटामिन डी डायग्नोसिस कैसे, जैसे लोगों को बैक पेन हो रहा है, बोन पेन आ रहा है, कहीं ना कहीं इनके पीछे नॉन स्पेसिफिक फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाते हैं, रिकेट्स जिनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाए, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन लो हो जाता है, लो वेन मिनरल हो जाता है। डिसऑर्डर्स 10 विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेज जैसे रिकेट्स हैं, तो बहुत अच्छे पिक्चर्स लिखे हुए हैं। सर की प्रॉब्लम, सीवर डिप्रेशन की प्रॉब्लम आती है। डिप्रेशन के पीछे मेन कॉज है क्योंकि बहुत सारे, खासकर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, विटामिन डी उसके लिए बहुत ही अच्छा प्रोमिनेंट रोल करता है। इवन आजकल रिलेशनशिप भी इसके बीच में एक सीढ़ी चल रही है कि टेस्टोस्टेरोन और उसके लिए, इसलिए बहुत लोगों को डिप्रेशन की जो दिक्कतें हैं फीमेल में भी होते हैं इसके पीछे। और इसके लिए जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है 200 to 600 IUI है, डिपेंडिंग ऑन द एज। और ऑस्टियोपोरोसिस, ये दिखा फोटो है, बोन में जो छोटे छोटे छेद हो जाते हैं इसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। हड्डियां कई लोग बुजुर्गों को आप देखोगे लेटे लेटे भी टूट जाती है। बाथरूम में जाते हैं तो पैर स्लिप होता है, हड्डियां टूट जाती हैं, चलते चलते भी टूट जाती हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और ऑस्टा मलेशिया है कि बहुत ज्यादा अब्जॉर्प्शन का है, फोटो दिया है बहुत अच्छा। विटामिन ए है रेगुलेशन ऑफ सेवरल एंजाइम के लिए विटामिन ई की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि हम लोग TCA साइकिल होता है, TPA साइकिल होता है, जिससे हम लोग ATP एनर्जी प्राप्त होती है, उसके उसके फंक्शन के लिए, स्टार्ट करने के लिए विटामिन ई की बहुत इंपॉर्टेंट और प्रेमिनेंट रोल है। और ये विटामिन ई मेटाबॉलिज्म का फंक्शन है कि हमको, जैसे पहले भी हम लोग पता है कि जो भी चीजें हमारे बॉडी पे हैं और एब्जॉर्ब होती है तो हमारे इंटेस्टाइन में होती है। और वो इंटेस्टाइन से एक लाइपोप्रोटीन करके प्रोटीन है, वो क्या करता है, जो इंटेस्टाइन से जो विटामिन ए के मॉलिक्यूल्स हैं उनको कैरी करता है। तो लाइपोप्रोटीन यहाँ पे फिगर में दिया है, लाइपोप्रोटीन कैरी कर रहा है जो कि लीवर में ले गया। लीवर में क्या है, लाइपोप्रोटीन से हम लोग अल्फा थायमिन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें लिखा हुआ है ट्राइंगल से एक रेड शेप बना हुआ है के रूप में वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अल्फा और जो लेमडा टोकोफेरॉल है वो दोनों अलग अलग जाता है। और फिर अलग अलग टिश्यूज में एक प्रोटीन है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो उसको कैरी करता है, ट्रांसपोर्टर के रूप में काम करता है, जैसे कि हम लोग एक हमारे बीच में कार के रूप में काम करता है। और उसमें पर जब इंटेस्टाइन से अगर वो उसको लिवर में ले जाना है तो लाइपोप्रोटीन है, वो उसकी गाड़ी चलाता है, मतलब गाड़ी में लेके जाता है। और जो उसकी दूसरी ट्रांसपोर्टर होती है LDL होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये विटामिन ई के प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स, टिश्यूज इंजीनियरिंग में, ड्रग डिलीवरी में, और जैसे बहुत सारे जो कैंसर के जो बीमारी होते हैं वो विटामिन ए की यूज करते हैं, क्योंकि विटामिन ए हमारे बॉडी में बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। अगर विटामिन ई की मात्रा कम है तो आपको इम्यून रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, जिनकी इम्यून कम हो जाता है। और जितने भी हमने विटामिन की बात की हैं, जनरली सारे
फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन के भी फैट सॉल्युबल विटामिन जो हमारे ब्लड के क्लॉटिंग करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका मेथड है कि 13 सेकंड के अंदर आपका ब्लड निकलता है, 13 सेकंड के अंदर ब्लड अगर क्लॉट हो जाता है इट मीन्स आपको विटामिन के की कमी नहीं है। अगर वो 13 सेकंड से ज्यादा 1 मिनट के ऊपर में अगर समय ले रहा है तो समझ जाइए कि विटामिन के की कमी है और आपको कहीं ना कहीं डॉक्टर को पास में दिखाना चाहिए। ये हमारे फंक्शंस हैं विटामिन के। थायमिन का जो विटामिन है जिसको हम लोग टीपीपी के रूप में भी देते हैं, ये हमारी जो साइकिल होती है जिसकी पहले बताया टीपीए साइकिल में, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर और एसलेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थायमिन है। और थायमिन होल ब्लड सेल्स में भी पाया जाता है, प्यूराइड लेवल में भी, लैक्टेल में भी। विटामिन के क्रोमेटिन, रिमोडेलिंग और राइबोफ्लेविन के काफी सारे फंक्शंस हैं। डायबिटीज के फंक्शंस हैं। इम्प्लीकेशन ऑफ आरएफ फैक्टर के भी है। ये जो सिलोसिस है, हाइट इजिंग है, बर्निंग आइस है, क्लोसेमेटिक है, नाइसिन विटामिन बी 3 के रूप में जानते हैं। ये हाँ निकोटामाइड एसिड है जो निकोटिनामाइड एडिनाइल डाई न्यूक्लियोसाइड के रूप में चेंज होता है। ये हमारे बहुत सारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इम्पोर्टेंट है। अगर इसकी कमी से बहुत सारे स्किन रिलेटेड इवन बहुत केसों में डेथ भी हो सकता है। और 60 ग्राम ऑफ ट्राई ट्रेप्टोफेन जो केमिकल है वो हमारे बॉडी में आता है तो भी वो कन्वर्ट होता है 1 मिलीग्राम में। मतलब 60 मिलीग्राम अगर ट्रेप्टोफेन आए हम लोग खाएंगे तो 1 मिलीग्राम नाइसिन के रूप में कन्वर्ट होगा। और अभी जो गट गट हेल्थ है, अभी बहुत सारे नए रिसर्च है जो गट है और जो न्यूरॉन्स है सर के, दोनों में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और दोनों के न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड भी रहते हैं। और जो गट में और ब्रेन में क्या क्या चाहिए उसके हिसाब से एक प्रॉपर सिस्टमेटिक फंक्शंस बने हुए हैं। और बहुत सारे जैसे खासकर नाइसिन है उसमें एक बहुत जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट वाले हैं, बैक्टीरियल के बहुत अच्छे इफेक्ट, मतलब बैक्टीरिया के कारण ही वो विटामिन कन्वर्ट हो पाते हैं। अगर बैक्टीरियल गट हेल्थ ठीक नहीं है तो उसमें भी नाइसिन और विटामिन की बहुत सारी कमियां अपने आप आ जाती है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया कि सबसे पहले कोई बीमारी है तो पेट से आती है। और अभी मॉडर्न साइंस भी उसको बोल रहा है। B9 है, फॉलिक एसिड है जो प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट के लिए काम करता है। रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन जो बनते हैं हमारे बोन्स में उसके लिए। प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया की जो रिगार्ड से जो एनीमिया आजकल बहुत सारे कम्युनिटी में भी एनीमिया की प्रॉब्लम आती है, उनमें अगर B9 की कमी होती है तो और ज़्यादा बढ़ती जाती है। प्रिवेंशन न्यूरल ट्यूब मॉल फंक्शन है। ये जो न्यूरल ट्यूब है वहाँ पे आपके रेड ब्लड सेल्स बनाने में काम आता है और वो ट्यूब जो बनती है वो विटामिन B9 जिसको हम लोग फोलिक एसिड बोलते हैं, ये न्यूरल ट्यूब का भी फोटो दिया हुआ है। अब विटामिन दो B12 है जो कि मोस्ट ऑफ द vegetarian diet feel deficient in B12, that is a cofactor of two enzymes. These are the function of synthesis of methionine from homocysteine. इसके पूरे फंक्शंस हैं। अब B12 की कमी से बहुत सारे जो न्यूरल्स प्रॉब्लम होते हैं, जो न्यूरॉन्स के प्रॉब्लम होते हैं, दर्द होते हैं, झुंझुनी आती है, ये सारे B12 डेफिशिएंसी के कारण आते हैं। बॉडी की जो स्टोर डिप्लेक्शन भी रिड्यूस होता है। सीवियर सिम्टम है जैसे डिप्रेशन का भी कारण है B12। डिमेनिया है, नम है, लिम्ब है, नर्व पेन है। और कोऑर्डिनेशन की जो जो प्रॉब्लम होती है, जो माइंड में कोऑर्डिनेट और रिकॉग्निशन की प्रॉब्लम है, तो उसकी भी जो मेन कारण है विटामिन B12 हो सकता है। विटामिन सी है जिसको हम लोग बहुत ज्यादा नींबू और संतरे के रूप में पाए जाते हैं, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत है, जिसे प्रो कोलेजन बोलते हैं और कैलोजन बोलते हैं। स्किन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये बहुत सारे ऑस्टियोब्लास्ट और उसके विटामिन सी से जो कमी है दांतों और उसमें हड्डियों में क्या क्या डिफरेंसेस चेंजेस है उसके फिगर्स हैं जिनके नेल्स में प्रॉपर ऐसे बढ़ते नहीं है। फोटो पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है इसके वीक बोन हो रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं विटामिन सी है। इसलिए विटामिन सी देखते हैं कि बहुत सारे विटामिन के अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी होता है, जो कि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन के रूप में जाना जाता है। ये स्कर्वी जैसे कि हम लोग पहले ही बात किए, इसके सिम्टम्स कैसे कैसे होते हैं, ब्लीडिंग स्किन्स में होते हैं, म्यूकस में होते हैं, डिप्रेशन आता है, इंक्रीज
इन्फेक्शन के जो लंग इन्फेक्शन के हैं उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, रफ हो जाती है, मसल वीकनेस है, जॉइंट है, उसमें बॉडी में भी प्रॉपर फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जिंक के हैं, कोएंजाइम्स के, जिंक प्लस के, जिंक बहुत ही एसेंशियल है। और जिंक जो हमारे एटीपी साइकिल होता है जहाँ पे हम लोग एनर्जी प्रोवाइड होते हैं, वो जिंक सभी चीज़ों में इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब कोविड के समय है, जिंक के विटामिन मल्टीविटामिन के रूप में जिंक दिया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी उसमें आती है कमजोरी ना है। तो कमजोरी को बढ़ाने के एटीपी साइकिल जब प्रॉपर कर्व साइकिल जब प्रॉपर काम नहीं करता है तो वी नॉट फाउंड प्रॉपर एनर्जी। आयरन है, जैसे कि पता है, फेरिन के नाम पे हमारे बॉडी में होता है। और जो होमोग्लोबिन है, ग्लोबिन और हीमो हीमो मतलब एक आयरन का पार्ट है जो हमारे बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब होता है हीमो के नाम से। तो हीमोग्लोबिन के रूप में बनता है, जो कि हमारे ऑक्सीजन सेल्स को हमारे सारी सेल्स में लेके जाता है। तो अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो डायरेक्टली हमारे सेल्स में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। इसलिए आयरन हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए बायोसिंथेसिस दिया हुआ है पूरा। आयरन डिफिशियंसी में डिफेक्ट जो बीटा सेल्स में है, क्या कैसे कैसे डिफेक्ट्स आ रहे हैं, उसका बहुत ही माइन्यूट पिक्चर है। आयरन प्रोफाइल टेस्ट भी होता है। मैग्नीशियम है, जो कि हमारे ब्लड जो हाई ब्लड फूड जो है उसको मेंटेन करने के लिए, जो ब्लड के सर्कुलेशन सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्लड क्लॉटिंग है, कैल्शियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी our next speaker is ready, डॉक्टर सरिता सिंह। कैल्शियम डेफिशिएंसी में दांत के डेंस की पिक्चर है कि कैसे दांत के बीच में ऐसे आते हैं कैल्शियम। और जो नाखून है, नाखून किस तरह से है, फोटो है। बैक पेन है, मसल्स के जो है क्रैम्प पड़ जाते हैं, वो कैल्शियम के कारण है। और ये कैल्शियम और विटामिन डी और विटामिन सी के बीच में काफी कोरिलेशन है। एक ही विटामिन की अगर दवाई खाएंगे, दूसरा विटामिन नहीं ले रहे हैं, तो हो सकता है आपके बॉडी पे जा रहा हो पर वो एब्जॉर्ब न कर पा रहा हो। आयोडीन जो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट के रूप में है। थैंक यू फॉर patient listening for so long time. It is around 35 in today's era of जहाँ पे रील का है जो 30 to 90 सेकंड्स में रील चलते हैं, उस समय में भी आप लोग इतने मिनटों तक साथ में रहे और भी स्क्रीन में। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑडियंस. If you have any question, you can ask me in the chat box. You can send to the message to our coordinator, Dr. Jitendra and Dr. Vana Ma Swami Sailo. Is it right, Thank you, sir. ma'am? Yes, it's Your correct, name is sir. so tough. I think it is tough than medicine's name. Exactly, sir. Exactly. Sir, thank you so much for sparing your valuable time and sharing with us a very important topic on food nutritional security and sustainability, covering in detail food security, nutrient and nutrition, and many interesting top concepts, sir. Now, I would like to open the stage to the participants. If they have any queries that sir can address, please raise your question in the chat box. Sir, the participants are uploading your presentation. They're all saying good session. Very interesting, excellent, very informative, sir. They all are very interested. I think there are no questions, sir. They asked for your presentation. So, sir, thank you so much for this Thank enlightening you, all of you. session. I know and I believe the participants have gained a lot of knowledge, especially in the field of food nutritional security and sustainability. So, sir, we thank you for sharing, for your sharing with us your in-depth knowledge. We do send you our best wishes and success in your path. Thank you so much, sir. Thank you, madam. So, as we move forward with our program, this evening we are indeed fortunate to have our respected speaker, Dr. Sarita Singh, ma'am. Ma'am is currently serving as agriculture scientist, agricultural extension education at Krishi Vigyan Kendra, Chhindwara, Madhya Pradesh. She has a vast experience of nearly 7 years of working in KVK system. Being a promising
young and dynamic women scientist. She has received many awards on various forums for her enthusiasm towards working for the betterment of rural community. She is also engaged in National Service Scheme as a program officer, and she has to her credit 5 books, 18 booklets, 42 research papers, 60 popular scientific articles, 5 technical bulletins, 5 radio and 2 TV programs, and many other significant appearances. And she has published 20 research papers in reputed NAS-rated national and international journals, and she has presented many research papers in national and international seminars. She is a life member of many scientific societies and editorial board of various journals of academic interest. Ma'am, your achievements are amazing and noteworthy, and we are unable to enlist them all in such a short period. So I wholeheartedly welcome you, and I would like to hand over this virtual stage to you. Over to you, ma'am. Thank you so much, ma'am, and respected sir. I'm audible, sir. Audible, ma'am. Audible. 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 Okay, thank you. Thank you so much, ma'am and sir. Today is the 21 days winter school training on this giving opportunity for me. So very thanks a lot this opportunity for this session. So I will continue my PowerPoint presentation, sir. Please share, ma'am, your presentation. This is my topic: metro farming versus urban farming. Ma'am, can you please share it in full screen mode and also in bilingual mode, English and Hindi together, please? Okay. Visible, ma'am? It is visible, ma'am, but it is still not full screen. Okay, I will try this. Yes. Visible, ma'am? Ma'am, it is still in not in full screen mode. Ma'am, if you can reshare this one and put it on full screen before you share, then it will be okay. Before screen sharing. Ma'am, there is this slideshow button down near the Zoom percentage. There, if you could press, it might be in slideshow mode. Okay. Percentages. Visible, ma'am? It is visible, ma'am, yeah. But if possible, if you could
नो Do it in प्रॉब्लम, French. कंटिन्यू करवा दो, कंटिन्यू करो, कोई इशू नहीं। Okay, ma'am. Please continue, ma'am. Thank you so much, ma'am. Today's my topic natural farming versus organic farming. मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगी मेरा प्रेजेंटेशन शुरू होने से फर्स्ट पहले। फर्स्ट स्लाइड ले आइए मैम, फर्स्ट स्लाइड। ओके, प्राकृतिक फार्मिंग जो कि आज की डेट में सर अगर मैं बताना चाहूंगी तो हमारे माननीय मोदी जी का जो सपना है वो हमारे देश के जितने भी किसान भाइयों हैं उनको एक अपनी आय को दोगुना करने का एक बहुत अच्छा सोर्स है जिससे कि हमारे किसान भाई जितना भी हो सके अपने आय को दोगुना कर सके। ये टॉपिक मैंने इसलिए यहाँ सेलेक्ट किया क्योंकि आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर जितनी भी हमारी खेती है उसमें हम अपने आय से कहीं ज्यादा अपना खर्च को ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं हमारी नेचुरल फार्मिंग को कि किस तरीके से हम अपनी धरा को सुरक्षित कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है भारत सरकार का कि हम अपनी प्राकृतिक खेती के माध्यम से हमारी जो धरा है उसको कितना सुरक्षित कर सकते हैं, कितना अच्छा बना सकते हैं, कितना रासायनिक मुक्त कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए, हमारी प्रकृति के लिए, हमारे जो पर्यावरण के लिए कितना उपयोगी हो सकता है। इस चीज के विषय में आज मैं आपको कुछ आपसे कुछ डिस्कशन करूंगी। तो मेरी जो भी अगर आपकी जो भी क्वेरीज हो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप अपने चैट बॉक्स में साझा करें जिससे कि मैं आपके सवालों को जवाब दे सकूं। प्राकृतिक खेती की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कितने कंटेंट्स होते हैं जो कि हमारे किसान भाइयों को भी ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो उनको बहुत सारे कंफ्यूजन ये भी होते हैं कि कौन से ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में क्या क्या डिफ्रेंशिएट होते हैं और किस तरीके से हम इनको दूर कर सकते हैं, किस तरीके से इनको यूज कर सकते हैं। फीचर्स, स्कोप, इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं प्राकृतिक खेती के। साथ ही अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तो उसमें भी हमें किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग की आवश्यकता है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, उसकी मेथड्स और टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। अब अगर हम बात करते हैं नेचुरल फार्मिंग में फीचर्स की तो natural farming and ecology approaches working is harmony with nature. It avoids synthetic inputs for casting of healthy soil through cover cropping, mulching and beneficiary microbes by लोकल रिसोर्सेज। चूंकि लोकल रिसोर्स में हमारे पास इतने सारी चीजें होती हैं जो कि हम लोग इतना यानी कि फास्ट ग्रोइंग के लिए किसान इतना एग्री हो जाता है कि वो अपनी दूर की जो दृष्टि है उसको बगैर सोचे समझे ही अपनी हर एक चीज की आवश्यकता के लिए रासायनिक खेती के ऊपर डिपेंडेंसी कर लेता है। अगर ये डिपेंडेंसी को कम करके अपनी जो नेचुरल फार्मिंग, जो कि हमारे पास जो चीज उपलब्ध है, जो साधन हमारे पास उपलब्ध है, अगर हम उन्हीं साधनों का उपयोग करें तो वो हम बहुत अधिक यानी मुनाफा इससे कमा सकते हैं और बहुत कम पैसों में बहुत अच्छी हमारी भूमि को, हमारे शरीर को, हमारी धरा को सुरक्षित कर सकते हैं। स्लाइड मूव नहीं हो रहा है। स्लाइड मूव नहीं हो रहा है। यस मैम। बोल दो। मैम मैं आपकी स्लाइड शेयर कर देता हूँ, आप स्टॉप कर दीजिए इसको, मैं कर देता हूँ। ठीक है आप ओके। कंटिन्यू कीजिए मैम, कंटिन्यू कीजिए मैडम, कंटिन्यू कीजिए। ऑडिबल मैम?
ऑडिबल सर? हाँ मैम, कंटिन्यू कीजिए इसको। जी जी सर। सर नेक्स्ट स्लाइड करिए ना सर। फीचर्स अगर हम बात करते हैं फीचर्स में, सर आई एम ऑडिबल सर? ऑडिबल Ma'am, मैम, you're ऑडिबल। audible. फीचर्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग तो encourage and environmental exposure of pesticide and chemical, builds of soil health, helps of soil erosion, flight and effect of global warming, encourage biodiversity, supports animal health and welfare, decrease of algae and blooms, support water conservation and water health. Scopes of natural farming: environmental scope, soil health, biodiversity, water conservation and reduce of pollution. अगर हम नेचुरल फार्मिंग में इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने पर्यावरण को, सॉइल हेल्थ जो कि हमारी मिट्टी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है कोई भी ग्रोथ। Second, economy scope, cost efficiency, premium precision and health scope, nutrient rich produce reduction, chemical reductions. And second, स्कोप्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो नेचुरल फार्मिंग है उसको हम सोशल साइंस के माध्यम से, सोशल स्कोप्स के माध्यम से किसानों के बीच ले जाकर हम अपनी नेचुरल फार्मिंग को बहुत अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि किसान, अगर हम बात करते हैं कि नेचुरल फार्मिंग को एकदम से वो अडॉप्ट करे तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर एक किसान ये चाहता है कि उसे एकदम से हर एक चीज का बेनिफिट मिले, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर हम नेचुरल फार्मिंग वर्सेस ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो इसमें कम से कम हमें 3 साल का समय चाहिए, जो कि एक किसानों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि आज हम बात करते हैं कि किसान अपनी आय से ज्यादा खर्च करता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो आर्थिक समस्याओं से जूझता है, जिससे कि उसको बहुत सारी पारिवारिक समस्याओं से का निर्वहन करने में दिक्कत होती है। अब अगर हम बात करते हैं आगे इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग, तो नेचुरल फार्मिंग को किस तरीके से हम इम्पोर्टेंस, जो महत्व है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं और हमारा जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है उसको भी किस हद तक हम एक इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। जैसे कि इकोलॉजिकल बैलेंस, सस्टेनेबिलिटी, एग्रीकल्चर, हेल्थ, इम्प्लीमेंट, रिलीजियंस इन चेंज ऑफ क्लाइमेट, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल प्रिजर्वेशन, जो कि एक बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं। हम जिसकी बात करते हैं कि जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। जब अगर हम इन सभी चीजों का उपयोग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी जो इन्वायरमेंट सिस्टम है इससे हम खिलवाड़ करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। अब अगर हम बात करते हैं कि नेचुरल फार्मिंग अभी नया जो सिस्टम इंकरेजमेंट उसका इतना चल रहा है, क्यों हम इस चीज को अडॉप्ट करें, तो हम ज्यादा दूर की बात नहीं करें और हमारे पास जो 1966 या 67 में जब हमें हरित क्रांति लेकर आए थे
उस समय हमें इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट थी। पर आज अगर हम बात करते तो ये सभी चीज हमारे पास इतनी मात्रा में है कि अगर हम 5 साल 10 साल भी अगर इनका उपयोग ना करें तो हमें कहीं बाहर देश से इसका हमें मंगाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो नेचुरल फार्मिंग अगर हम इस जगह पर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी धरती माँ को सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग की। इम्प्रूव्ड सॉइल हेल्थ, वाटर कंजर्वेशन, reduced carbon footprint, economic advantage, biodiversity enhancement, community empowerment, and reduced pollution, preservation of natural resources। क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट से कोरिलेटेड होते हैं और कहीं ना कहीं हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है इनसे इनका संबंध होता है। जब तक अगर हम एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं होंगे हम नेचुरल फार्मिंग को करने में बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होंगे। तो हमें अगर किसानों के बीच में अगर हम लोग जाते हैं तो हमें सबसे पहले किसानों को यही चीज बताना है कि हमें इस नेचुरल फार्मिंग को करने के लिए कुछ समय तक पेशेंस रखना है। कुछ समय के लिए हमें अपनी धरती माँ को अगर सुरक्षित करना है तो हमें इन सभी चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों जरूरी है और ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में अगर हम बात करते हैं तो मेन डिफरेंसेस क्या है। अगर हम इनमें समानता की बात करते हैं तो ये दोनों ही हमें बाहर से अवेलेबिलिटी नहीं होगी। हम अपने फार्म में ऑन फार्म जो भी हमारे पास अवेलेबल है हमें उन्हीं चीजों का उपयोग करना है। जैसे कि अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो हमें जो गाय का देसी गोबर हो, गोमूत्र हो, पशु गुड़ हो, जो भी यानी बेसन, हमें यानी बाहर से कोई भी चीज लाने की इसमें जरूरत नहीं है। हमारे पास जितनी अवेलेबिलिटी है उन्हीं सभी चीजों से हम नेचुरल फार्मिंग को इजीली कर सकते हैं। अगर कोई किसान हमें हमें ये क्वेश्चन करता है कि हमें इसे करने के लिए कीट नियंत्रण नहीं हो पाते या हमें इसमें बहुत समय लगता है, तो इन सब चीजों में कीट नियंत्रण की भी विशेष विधियां है। जैसे कि अपना अग्नियास्त्र हुआ, ब्रह्मास्त्र हुआ, नीमास्त्र हुआ, इन सभी चीजों को भी बनाने की विशेष विधियां होती है जिससे कि हम प्राकृतिक खेती में उपयोग कर सकते हैं। Ma'am, as you move to the next slide, please instruct sir to go to the next slide so that each slide will be presented according to your explanation, ma'am. ऑर्गेनिक फार्मिंग मैम। Hey, ma'am, as you move to the next slide of your presentation, please instruct sir next slide बोल के मैम, ताकि we can see as you explain in the slide. हेलो। हाँ मैम, मैं कह रहा था कि आप जब स्लाइड के लिए मुझे बोलो कि नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, देन आई कैन मूव दैट। जिस स्लाइड के लिए आप प्रेजेंट कर रहे हो ना मुझे बता दिया करो, नेक्स्ट बोल दिया करिए। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट कर दीजिए जिससे कि आप बोल दीजिए कि मुझे नेक्स्ट स्लाइड कब करनी है, तो नेक्स्ट प्लीज बोल दिया करो आप। ठीक ठीक सर। नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा आप क्या बोल रहे हो, ठीक है ना? ओके। Second topic, organic farming. Organic farming is a system which avoids for largely excluded of यूज ऑफ सिंथेटिक इनपुट्स। जैसा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के विषय में हम सभी लोग अवगत हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें ये भी हमारे लिए क्यों जरूरी है और इसकी भी हमें क्यों आवश्यकता पड़ी। क्योंकि रासायनिक खेती और जैविक खेती में अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये भी किसी ना किसी रूप में हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक होते हैं। रासायनिक पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स हमारी बॉडी के लिए इतने हार्मफुल होते हैं कि अगर हम बात करें कि आज हर एक घर में एक ना एक पेशेंट्स मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी रासायनिक खेती के ही परिणाम है। जैसा कि कई लोग बोलते हैं कि हमारा एक फैमिली डॉक्टर्स होना चाहिए, तो हम केवीके के माध्यम से किसानों तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आज की डेट में कि सभी के पास एक किसान, एक हेल्दी यानी कि अपना किसान डॉग होना जरूरी है। क्योंकि
किसान से संपर्क इसलिए होना जरूरी है क्योंकि वो आपको आपके रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको और जैविक खेती के माध्यम से वो आपको जैविक ही फल सब्जी अनाज अवेलेबल करा सकता है, जिससे कि आपको जो होने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं इन्हें होने से कुछ हद तक हम अपने यानी कि जो भी हमारी बीमारियां इनको हम कुछ हद तक कम कर सकें। क्योंकि आने वाला समय इतना ज्यादा रासायनिक का है कि आज हम जो भी सब्जियां खाते हैं उसमें हम 90 से 80% तक केमिकल प्रूफ भी वो होती हैं, जो कि हमें अभी अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि हम अपनी हेल्थ को बहुत अच्छी तरीके से सही रख सके। नेक्स्ट प्लीज सर, नेक्स्ट स्लाइड सो। ये ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसके कुछ फीचर्स होते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें कौन कौन से हमारे जो कंपोनेंट्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ग्रीन मैन्योर, अगर हम ग्रीन मैन्योर अपनी फील्ड में लगाएंगे जिससे कि हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बहुत अच्छी होगी। क्रॉप रोटेशन से भी हमारी भूमि की जितनी भी क्रॉप रोटेट करके लगाएंगे, अगर लेग्यूमिनी लगाएंगे और डाइकोट्स लगाएंगे तो उससे भी हमारी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो भी हमें बहुत अच्छी मिलेगी। अगर हम काउ एनिमल जो कि पशुपालक, अगर एक किसान है और उसके पास पशुपालन नहीं है तो हम वहां पर जैविक खेती की बात बिल्कुल कर ही नहीं सकते, क्योंकि जैविक खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक होते हैं। और साथ ही हम बात करते हैं कुछ मैन्योर्स होते हैं, कुछ वर्मी कंपोस्ट होते हैं जो कि वर्म केचुआ मित्र की श्रेणी में आते हैं। केचुआ खाद अगर हम यूज करते हैं तो वो भी हमारे खेतों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब हम बात करते हैं कि नेचुरल फार्मिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है, सॉरी ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर हम अभी बात कर रहे थे कि ग्रीन रिवोल्यूशन के समय हमें जो हमारे पास अनाज की कमी आई थी उसको दूर करने के लिए हमें रासायनिक खेती का सहारा लेना पड़ा, जो कि अब हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में है। जो कि अगर हम अभी कुछ समय के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमें खेती में हम केमिकल का यूज कम से कम करके हम अपनी खेती को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकेंडली, इम्प्रूव रैपिडली रिगार्डिंग सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ लॉन्ग टर्म। हम अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, इम्प्रूव बनाने के लिए भी सॉइल फर्टिलिटी का के माध्यम से लॉन्ग टर्म में यूज कर सकते हैं। थर्ड, हमारी कॉस्ट को इंक्रीज करने के लिए भी, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन के माध्यम से भी ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। टू रिड्यूस इंक्रीज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो कि आज के समय में बहुत बड़ा पोल्यूशन के रूप में यूज हो रहा है। हमारे पास इतने हमारे फर्टिलाइजर्स, चाहे वो कोई भी प्रकार के हम फर्टिलाइजर्स को देखें, जिससे कि हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बहुत ज्यादा खराब हो रही है, जिससे हमारा वाटर लेवल भी कम हो रहा है, वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है। तो इन सबको रिड्यूस करने के लिए भी हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की आवश्यकता है। टू इंश्योर दी वाटर स्टे क्लीन एंड सेफ, जिससे कि हम अपने वाटर को, यानी जो हमारा पानी है उसको साफ करने के लिए भी हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है। सर नेक्स्ट। नीड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब हम अगर बात करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्यों हमें इतनी आवश्यकता पड़ रही है, जिससे कि हम हर एक हमारे यानी कि किसान भाइयों से ये आग्रह करते हैं कि हमें किस प्रकार से अपनी खेती में कुछ हिस्से में ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए। जैसे कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन में कंपल्सेशन टू stabilize agriculture production, but to increase in it further in sustainable manner. Second, natural balance need to be maintained at all costs for existence of life and property. Agrochemicals which are produced from fossil fuel and are not renewable and disseminating of inavailability. Next.
ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि ह्यूमन से लेकर हमारे जो भी इकोलॉजिकल सिस्टम्स है इन सभी के लिए ये बहुत ही ज्यादा बैलेंसिंग होते हैं। ये जानने ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ हेल्थ, हेल्थ के साथ हेल्थ इकोलॉजी, हेल्थ सेकेंडरी इकोलॉजी, देन फेयरनेस एंड केयर, जो कि हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं कि हम किस तरीके से इनको मैनेज कर सकें। नेक्स्ट, फर्स्ट principles of health. Organic agriculture should sustain and enhance the health of soil, plant, animal, human, and planets as one and individual. So, healthy soils produce healthy crops that foster the health of animals and people. Health is the wholeness and integrities of living system, and then the role of organic agriculture, whether in farming, processing, distribution of consumption, is to sustain and enhance the heal ecosystems and organisms from the smallest in the soil of human beginnings. Second, so next slide, please, Sue. Second principle, principles of ecology. Organic agriculture should be based on living ecological system and cycles, work with them, emulate them, and help sustain them. Second, the principal root organic agriculture within living ecology system. It states that production is to be based on ecological process and the recycling. Nourishment and well-being are achieved through the ecology of the specific production and environment. And last, organic management must be adapted to local condition, ecology, culture, and scale. Please, next slide, Sir. Principle of fairness. Organic agriculture should build the relationship that ensure fairness with regard in common environment and life opportunities. This principle emphasizes that those involved in organic agriculture should conduct human relationships in a manner that ensure fairness at all levels and all parties, farmers, workers, processors, distributors, traders, and consumers. Please, next slide, Sir. Principles of care. Organic agriculture should be managed in a precautionary and responsible manner to protect the health and well-being of current and future generations and the environment. Organic agriculture is a living and dynamic system that responds to internal and external demands and conditions. This principle states the precautions and responsibilities are the key concerns in management, development, and technology choices in the organic agriculture. Please, next slide, Susan. Basic steps of organic farming. मेनली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में बेसिक स्टेप्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो
सबसे पहले हमें जो हमारा कन्वेंशियल मैनेजमेंट है इसको हमें ठीक करना होगा। सेकेंडरी, जो हमारा सराउंडिंग सिस्टम है, जो कि हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबिलिटी सिस्टम से, इसको भी हमें देखना होगा कि हम किस तरीके से इसको सही कर सकते हैं। देन क्रॉप प्रोडक्शन विद द यूज ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज। अगर हम बात करते हैं कि हम एक ही क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंसी रखकर हम अपने सोर्स को, अपने क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, तो इसके साथ ही हमें अपना क्रॉप रोटेशन, रिड्यूस मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक मैन्योर एंड बायोलॉजिकल इनपुट्स को भी ध्यान में रखकर हम अपने जो सॉइल्स के कुछ ऑर्गेनिक कुछ स्टेप्स है इनको अपनी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। देन मैनेजमेंट ऑफ weeds and pests by better management practices. मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसे कि अभी मैं बता रही थी कि क्रॉप रोटेशंस, अगर हम लेग्यूमिनेसी एंड जो एक बीज पत्री या दो बीज पत्री अगर हम बात करते हैं, तो हमें इन क्रॉप को रोटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि डाइकोट्स और मोनोकोट्स में दोनों की जो रूट्स से जो हमारी सॉइल की ग्रोथ यानी कि कार्य करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंसी होती है, बहुत ज्यादा दोनों के ऊपर फर्क पड़ता है। अगर हम एक साल, अगर हम रबी में डाइकोट्स ले रहे हैं और या मिलेट्स कोई भी मोनोकोट्स लेंगे, डाइकोट्स लेंगे, तो उससे हमारी जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगी। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ग्रीन मैन्योरिंग, जैसे कि अगर हम ग्रीन मैन्योरिंग की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो जो हमारी जैसे कि समर में अगर हमको डिप्लॉइंग करने के बाद अगर हम ग्रीन मैन्योरिंग जो भी फसल लगाते हैं, जैसे कि सनई हुई, ढैचा हुआ, इनको हम खरीफ में कोई भी फसल बोने से पहले अगर हम इनको अपने जायद में अगर हम इनको यूज करते हैं, उसके बाद हम अपनी खरीफ की कोई भी फसल को लगाते हैं, तो इससे हमें बहुत बेनिफिट्स होते हैं और हमारे जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं ये बहुत हद तक इंक्रीज होते हैं, जिससे कि हमें क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड से कंपोस्टिंग में अगर हम बात करते हैं सर, तो वर्मी कंपोस्ट में जो हमारे बर्म्स होते हैं सर, हम इनको किस तरीके से फार्म मैन्योर्स में जो यूज करने वाले, जैसे वेजिटेबल्स, फूड वेस्ट हुआ, क्रॉप रिड्यूस्ड हुआ, और जो हमारी रिच न्यूट्रिएंट्स हुआ, इनको यूज करके भी जो हमारी सॉइल में अगर हम इनको भी यूज करते हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद का यूज करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। मल्चिंग की अगर हम बात करते हैं, तो सर ये हमारी सॉइल के लिए जो हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ये बढ़ाने में बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होती है, जो कि हमारे, अगर हम इसमें ब्लैक पॉलिथीन का यूज करते हैं, या हमारे पास जो नेचुरल फार्मिंग में एक घटक होता है जिसको हम बापसा बोलते हैं, जो कि नेचुरल तरीके से हम उसको यूज करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो पानी वो नमी को मॉइस्चराइज करने का काम करते हैं, जो कि हमें मिट्टी में बहुत हद तक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बनाए रखने का काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। बायो फर्टिलाइजर्स में बहुत सारे कुछ बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला, जो कि हम अपने खेतों में अगर इनका भी यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमको अपने मिट्टी को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट सरफेस एरिया में, सॉइल में, कोलोनाइज प्लांट पार्ट्स ऑफ प्रमोशन में सर ग्रोथ करने के लिए
हम इसको इंक्रीज होते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहुत बढ़ती है, जो कि हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। नेक्स्ट। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल के माध्यम से भी सर बहुत हद तक हम अपने जो ऑर्गेनिज्म जैसे पेस्ट विदाउट यूज ऑफ केमिकल इन दिस मेथड सम बेनिफिशियल इंसेक्ट, जो कि जिसको बोलते हैं आज की डेट में अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी इल्लियां हैं, तो इल्लियों को मारने के लिए हम सीधा स्प्रे की वो करते हैं, पर कुछ हमारे पास कुछ ऐसे पक्षी यानी बायोलॉजिकल हम अगर उनका उपयोग करते हैं, जैसे कि टी आकार की खूंटियों का हम अपनी खेत में यूज करते हैं, लगाते हैं, तो इससे भी जो इल्लियों को जो पक्षी होते हैं वो इल्लियों को पकड़कर खुद ही उनका वो कर लेते हैं, जो कि हमारी कहीं ना कहीं मिट्टी क्या बोलते हैं अपनी आय को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा वो भी रहता है, सोर्स होता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। बीड मैनेजमेंट। बीड, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये बिना उगे हुए कुछ खरपतवार होते हैं, जिसको हमें लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि हमारी जो फसल की ग्रोथ है उसको कम करते हैं। उनका स्पेस, जैसे कि स्पेस हुआ, न्यूट्रिएंट हुआ, वाटर हुआ, सनलाइट हुआ। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर इनको फोकस करते हैं तो ये बीड्स को विदाउट केमिकल भी हम बीडिंग के माध्यम से इनको रिमूव कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी मेथड्स होती है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट सर। वर्मी कंपोस्ट, जो कि वर्मी कंपोस्ट हम सभी लोग जानते हैं कि केचुआ हमारे किसानों के मित्र कहे जाते हैं, स्पेशली अर्थवर्म, जो कि इसका जो कि सभी किसान भाई इस चीज का फायदा भी, यानी कि अगर गांव में हम लोग मोस्टली जाकर विजिट करते तो हर एक किसान के, चूंकि मैं ट्राइबल बेल्ट से बिलोंग करती हूँ, तो ट्राइबल बेल्ट में मोस्टली जो किसान होते हैं वो इस चीज का उपयोग करते हैं, जिससे कि उनकी फसल पर इसका सीधा प्रयोग भी देखने को मिलता है। केचुए को हम लोग किसानों का फ्रेंड भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सो सर। सॉइल मैनेजमेंट। अब अगर हम बात करते हैं कि सॉइल मैनेजमेंट किस तरीके से हम अपने सॉइल को मैनेज कर सकते हैं, इस चीज के लिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम बात करें तो हर एक जगह की मिट्टी अलग अलग होती है, अलग अलग प्रकार से होती है, और किस तरीके से हम उसको मैनेजमेंट के द्वारा उससे अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, चूंकि अगर हम यहाँ ये भी बोले कि अगर पशुपालन ना हो वहां हम ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, जैविक खेती कर सकते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि पशुपालन और खेती एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि इससे पशुपालन से जितना भी रॉ मटेरियल निकलता है वो हम खेती में यूज करते हैं, और खेती का जितना भी अनवांटेड जैसे कि कुछ भी ऐसे जो ग्रॉस होती है उनको हम पशुपालन को खिलाने के लिए उपयोग करते हैं, जिससे कि हम एक बहुत अच्छी मात्रा में दोनों का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से हम लाभ ले सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं। जैसे कि farmers can reduce their production cost because they do not need to buy expensive chemicals and fertilizers। अगर किसान से हम बात करते हैं तो बहुत हद तक जो हमें अगर प्रोडक्शन इसकी बढ़ानी है तो
प्रोडक्शन कॉस्ट को अगर हम कम करते हैं तो हमें जो इसके फर्टिलाइजर्स के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाती है, और इससे जो भी खाद निकलता है उसको हम अपने खेतों में यूज करके बहुत हद तक केमिकल फ्री खेती कर सकते हैं। सेकंड, दे इम्प्रूव प्लांट्स ग्रोथ एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स। अगर हम इससे ग्रोथ की बात करते हैं तो जो कुछ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के माध्यम से भी हम इनको यूज कर सकते हैं। इन द लॉन्ग टर्म ऑर्गेनिक फार्म सेव एनर्जी एंड प्रोटेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट। अगर हमें एनवायरमेंट को बहुत हद तक प्रोटेक्ट करना है तो ये हमारी लॉन्ग टर्म फार्मिंग होती है, जो कि हमारी विदाउट एनर्जी एंड रिसोर्स के हम लोग इसको इजीली कर सकते हैं। सेकंड, अगर हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग को भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से बहुत हद तक इससे भी हम लोग बढ़ावा इसको दे सकते हैं, जो कि हम हमारे लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होगी। There is an increasing consumer are willing to pay more for organic foods। चूंकि आजकल सभी लोगों की ये डिमांड होती है कि हमें जैविक प्रोडक्ट चाहिए, पर जैविक खेती करना कोई नहीं चाहता है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। पर आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो आज भी कुछ एक ऐसी जगह कुछ एक ऐसे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं जो विदाउट पेमेंट की परवाह ना करते हुए अगर उनको पता चले कि ये जैविक फूड्स है तो वो उन्हीं को लेना पसंद करेंगे, उन्हीं को खाना पसंद करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि जहां पर ज्यादा एनिमल्स होंगे वहां पर प्लांट और वहां पर नेचुरल वे में हमें बहुत सारी चीजें इजिली अवेलेबल हो जाएंगी, जो कि हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। सेकेंड, पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज स्टॉप्ड। जो हमारा अगर हमारा जहाँ प्लांटेशन अधिक रहेगा वहाँ ग्राउंड लेवल में हमारा जो वाटर पॉल्यूशन है वो भी हमें बहुत हद तक वहां पर भी इस चीज को हम कम कर सकते हैं। पॉइजन फ्री, हम जो चीज भी खाएंगे, जो चीज भी उगाएंगे वो हमारा पॉइजन फ्री रहेगा। फूड टेस्टर बेटर। अगर हम बात करेंगे केमिकल और जैविक की, तो हमें यहाँ पर भी टेस्ट में उसका अंतर अलग ही समझ आएगा कि जो हम जैविक फूड्स खाते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है और जो हमारा केमिकल टेस्ट है उसका टेस्ट कैसा है। फूड कीप्स लॉन्गर। जो फूड्स को यानी कि रखने की जो कैपेसिटी, अगर हम जो केमिकल होगा वो ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन का नहीं रहेगा, और कुछ जो हमारा जैविक प्रोडक्ट है वो हम 1 हफ्ते तक 8 दिन तक के बहुत अच्छी तरीके से उसको सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सुसु। डिसएडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब कई किसान लोगों के साथ अगर हम बात करते तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे कि हम गांव में जाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि मैडम हमें इस खेती से कुछ भी लाभ नहीं होता है, तो वहां पर बहुत सारी चीजें देखने में आती है। तो हम किस प्रकार से उनको समझाइश दे सकते हैं, किस तरीके से उनको बता सकते हैं कि आप इसको बहुत अच्छे से प्रोडक्शन कर सकते हो, जिससे कि आपको लॉन्ग ड्यूरेशन में इसका बहुत अच्छे बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब हम बात करते हैं नेचुरल फार्मिंग वर्सेस ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो ये किस तरीके से यानी कि डिफरेंशिएट हम इनको कर सकते हैं। पहले तो हम डेफिनेशंस में, natural farming and organic farming, a method that relies natural process without using any external inputs। यानी कि हम नेचुरल फार्मिंग में कहीं से भी हमें बाहर से कुछ भी इनपुट्स लाने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे फार्म्स पर जो चीज इजी अवेलेबल है, हमें सिर्फ उन्हीं प्रोडक्टों का यूज करना है, उत्पादों का यूज करना है। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें क्या उसकी डेफिनेशंस इस यानी कि क्या हो सकती है उसमें। सिंथेटिक केमिकल्स, रिसाइकलिंग और नेचुरल इनपुट्स, क्रॉप रोटेशन एंड बायोडाइवर्सिटी का इन्वॉल्वमेंट उसमें
होना चाहिए। एक्सटर्नल इनपुट में नो एक्सटर्नल इनपुट रिलाइज प्योरली ऑन नेचुरल रिसाइकल, then uses natural and organic inputs like organic compost and natural pesticides. Soil fertility, pest control, weed management. Next slide, sir. सीड ट्रीटमेंट के लिए हम एक बीजामृत, नेचुरल फार्मिंग में जो कंपोनेंट्स होता है उसको हम बीजामृत के नाम से जानते हैं, जो कि हम इजीली अपने फार्म पर इसको भी बना सकते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जिसका हम उपयोग बाहर भी मिल जाए इजीली, बाहर से के लिए सीड ट्रीटमेंट में जैसे कि किसी ने अभी क्वेश्चन किया है, एग्जाम्पल बीजामृत बनाने के लिए हमें देसी गाय का गोबर लेना है, गोमूत्र लेना है, भुजा हुआ चूना लेना है, और जो हमारे पास खेत की मिट्टी है जहां पर कि हमने बिल्कुल केमिकल का यूज नहीं किया है, उस जगह की हमें मिट्टी लेनी है, जो कि हमारे बीजामृत बनाने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। इस प्रकार हम सीड ट्रीटमेंट, बीजामृत के द्वारा सीड ट्रीटमेंट करके भी हम अपने सीड को डायरेक्ट सोइंग कर सकते हैं, और 48 आवर्स के बाद हम अपने फील्ड में सोइंग कर सकते हैं। कॉस्ट, लो कॉस्ट, जीरो बजट में हम बहुत अच्छी कॉस्ट इसमें वो कर सकते हैं। इसमें हमें इन्वॉल्व सम कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक इनपुट क्लैरिफिकेशन एंड लेबर्स चार्ज, इसमें सर्टिफिकेशन एंड लेबर्स में कुछ कॉस्ट का इसमें हमें certification, no standardization certification process the worldwide and strictly clarification regulations regulated by national and international bodies. इसमें नेचुरल फार्मिंग में हमें किसी भी प्रकार से कोई सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं रहती, बल्कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर 3 साल तक किसानों को अगर वो खेती करता है तो वहां पर प्राकृतिक वो जैविक खेती के लिए हमें सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। Time consuming philosophy. Next slide, sir. Sir, next slide, please. Sir, next slide. Just a minute, just a minute. Just a minute. इसमें यहाँ से कौन मैम स्लाइड नंबर बता, डिफरेंस मैम स्लाइड नंबर 20, 30, 32, sir. 34, 33, na? 33, sir. yes ma'am. This one? Yes, sir. Okay. So this is my last slide. So अभी जैसे कि एक मैम का शायद मैसेज आया है कि प्रकृति यानी कि हम कैसे 70 to 80% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी है, तो मैं उनको ये बताना चाहूंगी इसी के माध्यम से कि मैम देखिए, अगर कोई भी चीज अगर हम करते हैं तो सडनली उस पर हम लोग
नहीं वो कर सकते, कुछ कुछ एरिया से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। और अगर हम अपने छोटे से एरिया से इस चीज की शुरुआत करेंगे तो हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक बहुत अच्छे लेवल को इसमें वो कर सकते हैं। जैसे मैं पहले भी बताई थी कि कुछ एक स्टेट्स पहले वो हुआ करते थे जो कि हमारी हरित क्रांति लाने के लिए उन्होंने प्रयास, पर आज बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो कि रासायनिक खेती में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके उन्होंने अपनी सॉइल को खराब कर लिया है। तो ये एक छोटा सा प्रयास है हमारा कि हम किसानों को प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के माध्यम से अवेयर करें और उनको इस चीज की तरफ उनका रुख करें कि वो ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती करें, अपने पर्यावरण को, अपने परिवार को बचाने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच सर। Thank you, ma'am, for sparing your valuable time and sharing with us a very important topic on natural farming versus organic farming, covering very important topic of today's agriculture and its many interesting concepts and principles. Now I would like to open the stage to participants if they have any queries that ma'am can address. Please raise your question in the chat box. Silo, Ma'am, one please question. check. Please check the chat box. Yes. One question for Deepika Unjan. In the world's most populous country like India, where 70 to 80% people are dependent on agriculture, is it possible for us to suddenly move towards organic or natural farming? That's the question, ma'am, if you could answer. यस मैम, जैसा कि मैंने अभी बताया कि सडनली हम कोई भी चीज को मूव नहीं कर सकते हैं। इसमें कुछ ना कुछ हमें जैसे कि छोटे से रकबे से शुरुआत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम किसान के पास भी जाते हैं तो डायरेक्टली उसको ये नहीं बोलेंगे कि आप आपकी जितनी 5 एकड़ आपकी अगर जमीन है तो आप 5 एकड़ पे पूरे पे जैविक खेती करिए या प्राकृतिक खेती करिए। हम उसको यही सलाह देंगे आप आपकी 1 एकड़ फार्मिंग 1 एकड़ खेती में जैविक खेती करिए या नेचुरल फार्मिंग, आपको जो इजी लगे आप वो करिए शुरुआत, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें छोटे से माध्यम से करना पड़ेगा। मैं मैम को इस मैसेज के माध्यम से यही समझाना चाहूंगी कि हम एकदम से कोई भी बड़ा कदम नहीं उठा सकते, तो हमें छोटे से छोटे लेवल को बढ़ाना होगा। Yes. Thank you, ma'am. Dr. Mahesh is saying informative session. Any other questions? Thank you. One more question from Pavitra Pidikiti. The question is how to control weeds in organic farming, especially weeds in direct seeded rice, only manual weeding, or is there any other management practice? अभी तक कुछ ऐसा तो हम ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से कुछ ऐसा यानी हम लोगों ने ट्रीटमेंट नहीं किया है, बट इसी के ऊपर प्रयास, कुछ रिसर्च ऐसी हो रही है। जब भी कुछ होगा तो हम जरूर उस चीज के बारे में आप लोगों को बताएंगे। हेड मैनुअली इसका सबसे अच्छा उदाहरण यानी कि सबसे अच्छा प्रैक्टिस है कि हम हैंडलिंग के द्वारा ही जितना वीड्स कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि शुरुआती अवस्था में बहुत अच्छा माना जाता है। यही एक सबसे अच्छी मेथड्स होती है कंट्रोल करने के लिए वीड्स को। Okay, thank you, ma'am, for the answer. One more question from Jyoti Pathak. The question is, Sikkim is a small state, but in large states, due to high demand, how can we adopt organic farming? ये एक सबसे अच्छा उदाहरण है। सिक्किम हमारे सभी राज्यों के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि इतना छोटा राज्य होने के बावजूद भी वो पूरा ऑर्गेनिक जैविक स्टेट्स है। तो उसी की पहल पर हम सबको भी विचार करना चाहिए कि हम भी इस तरफ एक अपना कदम बढ़ाएं। Thank you, ma'am. One more question is dropped by Dr. N.K. Rangare, IGKV. Population is increasing and agricultural land is decreasing. Then how can organic or natural farming can feed the people?
एक्चुअली सर, जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन में भी इस चीज को बताया था कि जो मैनुअल यानी कि जो इजीली अवेलेबल है हमारे पास नेचुरल फार्मिंग में, जो भी फार्म पे जो प्रोडक्ट अवेलेबल है, हमें उन्हीं इनपुट्स का उपयोग करके नेचुरल फार्मिंग में उपयोग करना है। और ऑर्गेनिक में हम कुछ भी बाहर के जो भी अगर हमारे पास इजीली हो, हम उनको भी खरीद सकते हैं, वो हम जैविक खेती में यूज करते ही हैं। पर ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग में हमें बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आई थिंक। Yes, I think that answers the question of Mr. H.R. Dhanitya. One more question from Dr. Akhilesh Kuthare. Organic farming can be done in hydroponic farming? Can organic farming be done in hydroponic farming? That's the question. बिल्कुल बिल्कुल सर, कर सकते हैं। ओके। Yes. This one more question from Ajit Manade. As you have told that food can be produced with organic farming, taste good. Can you give any example to justify that food in organic farming tastes better? I think that's the question. एक्चुअली सर देखिए, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं वो विदाउट केमिकल होते हैं, और केमिकल्स में के बगैर हम जो भी फूड्स खाएंगे सर, ऑब्वियसली उसका टेस्ट तो बहुत अच्छा ही होगा। जो नेचुरली हम, अगर आप देखिए, हम एक बनाना की बात करते हैं, तो हमारे जो फार्म पे जो बनाना उगता है वो ऑर्गेनिक तरीके से हम लोग उसमें विदाउट रासायनिक, विदाउट केमिकल कुछ भी चीज का स्प्रे नहीं करते वो, और उसका टेस्ट, और जो केमिकल स्प्रे वाला टेस्ट होता है उसको यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें टेस्ट में डिफरेंस अलग समझ आता है। Thank you, ma'am. Is there any more questions from the participants? I think the participants have understood greatly, and ma'am, thank you so much for explaining to all their queries, to answering to all their queries. And again, we thank you for this kind and enlightening words and for this very informative session. थैंक यू। I believe the participants have gained a lot of knowledge, especially in the field of natural farming and organic farming, through your vast knowledge. And we really value your sharing with us your in-depth knowledge on the topic. We do send you our best wishes and success in your path. Thank you so much, ma'am. अगेन थैंक यू सो मच मैम। Thank you, Dr. Sarita. Many congratulations. थैंक यू सो मच सर। Very informative session. ऑनलाइन वर्कशॉप। So as we have come to the end of tonight's program, I would like to take this opportunity to thank our valued and respected guests of honors and our amazing presenters, as their sharp intellect and vast experience motivates and boosts the knowledge of the participants. And we feel greatly privileged to have listened and learned from you. We wish and send our best wishes to you, and I thank our participants for being so attentive and interactive throughout the session. On behalf of Vital Biotech Agriculture Forum for Technical Education of Farming Society, Kota, Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur, University of Agricultural Sciences, Raichur, Karnataka, Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh, and Farmers Park, Hyderabad, Telangana, and the entire organizing team, I deliver my heartfelt gratitude to all our honored guests, speakers, and participants for joining this 21 days winter school program and for being so patient and attentive throughout. Thank you so much. Have a great evening, everyone.